برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والحیبة العسکری والغیبة الالہ القائم بامر اللہ۔ بلندر صلوات پڑھیے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے یہ مجلس ارشاد ثواب کی ہے۔ اللہ اس مرحومہ کے درجات بلند کرے، اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔ پر محمد وعلی محمد بلندر صلوات۔ اللہ محترم، یہ جو ایصال ثواب ہم رکھتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، یہ در حقیقت ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے کہ جو ہم اپنی طرف سے ہدیہ کرتے ہیں۔ جو بھی ہم ہمارے مرنے والے ہیں عزیزان، ان کا حق ہے ہمارے اوپر ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں، چاہے وہ ہماری والدہ کے سائڈ سے ہوں، ہمارے باپ کی طرف سے ہوں یا ہمارے سسرال کی طرف سے ہوں، ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو آئے دن روز اگر کریں تو بہت ہی بہترین ہے، لیکن کہا جاتا ہے روایات میں ہے کہ جمعرات کو ان کی نگاہیں ہمارے گھروں کی طرف ہوتی ہیں۔ اگر تو خدا ان کو اجازت دیتا ہے تو وہ باقاعدہ گھر تک آتے ہیں، کبھی خوابوں میں آتے ہیں بتانے کے لیے کہ ہمیں ضرورت ہے تمہارے ان تحفوں کی، اور کبھی کبھی وہ یہ بتانے بھی آتے ہیں کہ تمہاری جو چیزیں ہیں وہ ہم مل رہی ہیں۔ کبھی خواب میں آپ کو ہنستے مسکراتے نظر آئیں گے، کبھی آپ کو خواب میں بے چین نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہدیہ ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ اور جو ہم لوگ جب کسی دنیا میں کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو ہم کیسے دیتے ہیں؟ اس تحفے کو اسپیشلی ریپ کر کے دیتے ہیں، اس کو بہت اچھا سا پیارا سا بنا کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہم لوگ عام دنوں میں گھر میں کھانا کر رہے ہیں یا کسی گلاس میں پانی پہ فاتحہ دے رہے ہیں، یہ ہم کیسے بھیجیں گے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے ہم اس ہدیے کو ریپ کریں، اس ہدیے کو ہم سجائیں سواریں؟ وہ یہ اہل بیت کی محبت ہے کہ ہم انہی کے توسل سے کہ جب ان کو ہدیہ کرتے ہیں ہم کہیں کہ ہم اہل بیت کی توسل سے یہ ہدیہ کر رہے ہیں اپنے مرحومین کو، اور جب ہم ان کی طرف سے وہ ہدیہ تک پہنچائیں گے تو حقیقتاً یہ ہدیہ ہمارا مرحومین تک ضرور پہنچے گا۔ آپ اپنی ہر چیز میں یعنی روز مرہ کے حساب سے اپنے مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے اگر جس دن کھانا بھی گھر میں نہیں پکا تو گھر میں ایک گلاس پانی تو موجود ہوتا ہے، آپ بس پانی رکھیے، اس پہ فاتحہ پڑھیے اور ہدیہ کر دیجیے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہی ہیں، رستے سے پتھر اٹھا رہی ہیں کہ کوئی آ کے گر نہ جائے، اگر آپ نے کسی پڑوس والے کی مدد کی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ نے اس کو صرف مسکرا کر دیکھا ہے، اس چیز کا ثواب بھی آپ اپنے مرحومین تک پہنچا سکتے ہیں، اس کو یہ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ سب اس مجلس میں چل کر آئے ہیں، مجلس کس کی برپا کی جا رہی ہے؟ ابا عبداللہ حسین کی۔ اس میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ائمہ اطہار کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ائمہ کیسے ہمیں وہ درس دیتے ہیں کہ اپنے مرحومین کو یاد رکھا جائے، یعنی اماموں کا سب قول بیان کیے جا رہے ہیں، تو یہ جو چل کر آئے ہیں اس کو بھی آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان، مرحومین کو جو یہ ہم ہدیہ کرتے ہیں ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے، اور جب مولا کی بارگاہ سے ہم ہدیہ کرتے ہیں تو یہ اس جہان میں آہستہ آہستہ اپنے مولا سے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب ان تک ہدیہ پہنچتا ہے تو یہ خود ہمارے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، یعنی جب ہم بھی مر کے ان کے پاس جائیں گے تو اس وقت انہوں نے جو ہمارے حق میں دعا کی ہے، دنیا میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں لیکن آخرت میں بھی یعنی برزخ کے عالم میں بھی وہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی۔ عزیزان، وہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جہاں پر حساب بہت مشکل ہے،
क्योंकि इस दुनिया में आपका एक एक छोटे से छोटा अमल का हिसाब होगा। नेकी है उसकी जजा दी जाएगी, बदी की है उसका भी हिसाब आपसे लिया जाएगा। एक पल एक लहजा ऐसा नहीं होगा कि जिसका हिसाब हमसे ना हो। मौला क्या कहते हैं? मौला फरमाते हैं कि ये दुनिया अजीब है, यहाँ पर अगर कोई हलाल रोजी कमाता है, हराम का तो हिसाब होगा, लेकिन अगर आप हलाल भी कमाते हो तो इसका भी हिसाब लिया जाएगा। हराम पर तो आपको सरजनिश होगी, सीधा जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, लेकिन हलाल का हिसाब होगा कि तुमने कहाँ से माल कमाया, तुमने कहाँ खर्च किया, तुमने किस किस के ऊपर खर्च किया। अजीजान, अगर आप देखें तो हर एक मर्द के नीचे बहुत से कफील होते हैं, उसकी बीवी होती है, उसकी औलाद होते हैं, उसके वालिदैन होते हैं, हत्ता रिश्तेदारों का भी उसके ऊपर हक है, हत्ता कि आपके पड़ोसी का भी आपके ऊपर हक है। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए, अगर आपका पड़ोसी बगैर कुछ खाए पिए सो जाए तो आपसे बात कुछ होगी। यानी जो आप हलाल कमा रहे हैं उसके ऊपर भी खुदा ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है इस दुनिया में कि हर बंदा किसी के अंडर है, हर बंदा किसी न किसी का मोहताज है। जब हम इस दुनिया में आए हम मोहताज थे अपने वालिदैन के, आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े हुए हैं और हमारी औलादें पैदा हुई तो वो मोहताज रही। हर बंदा एक दूसरे का मोहताज है। एक औरत मोहताज है कि मर्द काम करके आए तो वो बच्चों के लिए खाना पकाए, बच्चे मोहताज है कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ ना कुछ पकाए। यानी हर आदमी एक दूसरे का वसीला बनाया है खुदा ने। तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे वालिदैन, ये जिंदगी एक वक्त इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हर किसी की मौत है, मरना तो है, कोई छोटी उम्र में मर रहा है, कोई बड़ी उम्र में मर रहा है, लेकिन वो जिंदगी के जहाँ पर हमारे मरहमी पहुंच चुके हैं उसका इख्तिताम नहीं है, उसका एंड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत तवील जिंदगी है। वहां पर हमने जो जो इस दुनिया में काम किया है उस सब का सिला हमें इस दुनिया में मिलेगा, उस दुनिया में हमें वो शक्लें मिलेगी। जैसे कि कुरान में कहा जाता है अगर झूठ बोला तो तुम्हें ऐसे बरज़खी जिस्म मिलेंगे। झूठ के बदले में, जैसे गीबत के बारे में मशहूर है कि अगर कोई किसी की गीबत करता है तो गोया कि वो अपने मोमिन बरादर का जिस्म खा रहा होता है, इसका गोश्त खा रहा होता है। अगर इस दुनिया में गीबत की है तो बरज़खी आलम में उसका जिस्म क्या होगा कि आपको जो खाना मिलेगा वो उस मोमिन बरादर का जिसकी गीबत की गई है उसका गोश्त पेश किया जाएगा कि अब तुम खाओ, क्योंकि उस दुनिया में हमने ये सारी हरकतें की थी। बज़ाने मोहतरम, वो शख्स कि जिसने इमाम की इताअत की है, जो इस फर्श अज़ा पे आया और जो कुछ इमाम के तवस्सुल से पता चला उसने अमल किया, वो अशखास होंगे कि जो उस जहान में भी ऐश करेंगे, जो उस जहान में उन नेमतों में रहेंगे कि जिसका जिक्र कुरान में बहुत सी जगहों पर किया गया है। और कुछ लोगों के लिए तो ये तक बयान हुआ है कि जब इमाम ज़माना इंशाअल्लाह के ज़हूर करेंगे तो उनको उनकी कब्रों से उठाया जाएगा। हर किसी को नहीं, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उनको बताया जाएगा, वो आंखें खोलेंगे, उनको पता चलेगा और फिर वो दोबारा अपनी खबर में सो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को बाकायदा रिजल्ट के लिए उठाया जाएगा। बहरहाल सिर्फ ये सोचें कि वो जो दुनिया है कि जिसमें हम सब ने जाना है मरने के बाद, वो कितने सालों की होगी। एक अंदाजन 1 मिलियन 2 मिलियन की मिसाल है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 मिलियन की दुनिया हो, क्योंकि ये बरज़ख का आलम जब तक कि क़यामत चलेगा तब तक हर किसी की बरज़ख, किसी की छोटी है, जो पहले मर चुके हैं उनकी अब तक वो बरज़ख का आलम चल रहा है, वो अब तक अपना हिसाब किताब देते आ रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में नेकियां की थी तो अब वो ऐसे बागात में रह रहे हैं कि जब क़यामत होगी, क्योंकि क़यामत का एक अलग सिस्टम है, बरज़ख का एक अलग सिस्टम है, वो एक अलग अलग दुनिया है, तो वो अपना हिसाब दे रहे हैं। क्या हमारे आमाल में ऐसी चीजें हैं कि हम आलम बरज़ख में हिसाब ना दें? क्या हर कोई अपने अपने आमाल की तरफ निगाह करे, खुद को नेक और साले अगर नहीं बनाएंगे तो हम आलम बरज़ख में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिफाअत क़यामत के दिन है। आइम्मा की जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, कहा है, मैं कहते हैं ना कि इमाम हमारी शिफाअत करें, लेकिन इमाम की शिफाअत तब करेंगे जब हमारा अमल ऐसा होगा कि जानबूझ के कोई गलती नहीं करनी, जानबूझ के किसी नामहरम को अपना बात नहीं दिखाना, ना जानबूझ के किसी नामहरम से बातें नहीं करनी, जानबूझ के किसी की गीबत नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, और कोशिश करते रहना है कि नहीं, अपने नफ्स पे कदम रखकर हमने वो सारी नेक चीजें करनी है जो कि मेरे मौला ने मुझे बताई हैं। अजीजान मोहतरम, ये दुनिया, इस दुनिया में आप सोचें कि
किस तरह से आप अपने आप को चलाएंगे इस दुनिया में ताकि आप ईमान के जवार में हो, ताकि मौला आप पे निगाहें करम करे कि जब वो वक्त आए तो आप किसी के सामने रुस्वा ना हो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। इस दुनिया में जब हम जो कोई कारोबार वगैरह करता है, जैसे माएँ हैं वो औलाद को कहती है अच्छा खाना खिलाएंगे ताकि उनकी आगे चल के सेहत अच्छी हो। इस दुनिया में हम कितनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम कितने ऐसे काम करते हैं ये सोच के कि ये करेंगे 10 साल के बाद ऐसा हो जाएगा, घर खरीदेंगे ताकि बच्चा इसमें रह सके। अजीजान, उस दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट करें। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एक तो आपके खुद के अमाल, दूसरा आपकी औलादें। अपनी औलादों को सुधारें। अगर नेक और साले आपने अपनी औलाद को बना दिया, यकीन जाने आप जब मर के जाएंगे तो आपकी औलाद जो भी नेक काम करेगी उसका सवाब आप तक भी पहुंचेगा। लेकिन अगर उन्होंने बुरा काम किया तो वो बुराई का भी सिला आपको मिलेगा। कहा जाएगा कि तुमने इस बच्चे की तरबियत सही नहीं की थी, लेकिन तरबियत भी सही वही करेगा जो खुद इंसान सुधरा होगा। अगर खुद कोई नमाज नहीं पढ़ रहा तो वो किस मुंह से अपने बच्चे से कहेगा कि नमाज पढ़ो? उसका बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ तो नमाज ही नहीं पढ़ रही, उसका बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ तो पर्दा नहीं करती, तो फिर बच्ची कहाँ से पर्दा करेगी? वो देख रहा है कि मेरी माँ हर वक्त मेरे साथ पड़ोसी से मुकायसा करती है, उससे हसद करती है, उसकी चीजों पे जलती है। बच्चा भी यही सीखेगा। आप कैसे उसकी तरबियत करेंगी? कि जबानी सिर्फ तरबियत नहीं होती है, सबसे पहला आपका अमल देखा जाता है। आप जो अमल करते हैं आपके बच्चे वही सीखते हैं। लेकिन इस चीज के लिए पहले अपने आप को सुधारना है, क्योंकि इस दुनिया में रहकर आप जो कुछ करेंगे वो चीज आपके बच्चों में आएगी। जब आप इस दुनिया से गुजर गए तो फिर ये बच्चे आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह ऐसे नेक काम छोड़ के जाए कि जो जिंदगी भर है। जैसे कहा जाता है किसी मस्जिद में किसी के पास इतना पैसा है तो वो मस्जिद में लगाए, जो जिंदगी भर जब तक वो मस्जिद चलती रहेगी वो सवाब उस तक पहुंचता रहेगा। इसी तरह अगर आप, क्योंकि अब हर किसी के पास पैसा नहीं है, हर कोई नहीं लगा सकता इन्वेस्टमेंट किसी मस्जिद में, तो क्या करें? औलाद सबके पास है, औलाद को आप सुधारें। अगर किसी के पास औलाद नहीं है तो वो किसी भी अगर एक बच्चे की तरबियत कर देता है, उसको सिर्फ एक बात सिखा देता है कि बेटा तुमने जब भी ये पानी पीना है मुंह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकालना है। अब जब जब वो बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा वो सवाब उस बच्चे के साथ आपके नामे अमाल में जाएगा। आप मर जाएंगे, वो बच्चा जिसको ये सिखाएगा कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, वो सब बच्चों का सवाब आपके नाम अमाल में। फजदारान मोहतरम, ये मौत जो है ये खुदा ने हमारे लिए इबरत बनाई है, एक लेसन है, एक सबक है हमारे लिए। लोग हमारे यहाँ मौत से डरते हैं, हत्ता कि मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम मौत से क्यों डरते हो? मौत तो तुम खुद तुम्हारी हिफाजत करती है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के साथ बैठे हुए थे और उनसे क्या कह रहे थे, किसका जिक्र कर रहे थे? मलकुल मौत का जिक्र कर रहे थे, जिससे हम लोग डरते हैं मोहम्मद कि भाई मलकुल मौत आएगा। सबको पता है मलकुल मौत वो फरिश्ता है कि जो हमारी रूह को कब्ज करेगा। उसको अल्लाह ने सिर्फ इसी काम के लिए तैनात कर दिया है कि तुम्हारा काम है हर मोमिन मोमिना जितने भी इंसान हैं उन सब की रूह कब्ज करनी है। अब सब लोग कहने लगे या रसूलुल्लाह ये क्या है? आपको जब देखो मलकुल मौत का जिक्र करते हैं, मौला अली को जब देखो मलकुल मौत का जिक्र करते हैं। आप हजरत जिब्राइल का जिक्र करें, हजरत मिकाईल का जिक्र करें, किसी और फरिश्ते का जिक्र करें, तो बस रसूलुल्लाह पलट के कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि तुम दोस्ती करो मलकुल मौत से? अब लोग तो खौफ करते, उन्होंने कहा नहीं या रसूलुल्लाह हमने दोस्ती नहीं करनी। लेकिन रसूल इस मौके पे फरमाते हैं कि तुम उससे दोस्ती करो या ना करो, वो या तो शख्स से दोस्ती करता है या फिर दुश्मनी करता है खुद से। कैसे? लोगों ने भी यही पूछा कि या रसूलुल्लाह ये कैसे होगा? कहा कि जब भी मलकुल मौत, क्योंकि बयान किया जाता है रिवायात में कि वो चौथे आसमान पर बैठा हुआ है, जब भी दुनिया में अजान का वक्त होता है, वो 5 अजानें जब भी आती हैं तो उस वक्त ये अजान के वक्त इस दुनिया में निगाह करता है, देखता है कि वो कौन सी शख्सियतें हैं कि जो अजान आने के बाद उठेंगी और वज़ू करेंगी और अपनी जानमाज पे अल्लाह की इबादत करेंगी, और वो कौन सी शख्सियत है कि जो इसी अजान के बाद कहेंगी हाँ हाँ हम पढ़ लेंगे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, लेकिन अभी अपने कामों में मसरूफ है, वो नमाज को अहमियत
नहीं दे रहे। यहाँ उन लोगों का जिक्र नहीं है जो नमाज पढ़ते ही नहीं है, उनका तो फिर पता नहीं कहाँ पर है हिसाब, लेकिन मलकुल मौत उन लोगों के चेहरे अपनी निगाहों में ना महफूज कर लेता है कि ये वो बंदा है कि जब अजान होती है ये उठता है, फौरन से वजू करता है और अपने अल्लाह के हुजूर पहुंच जाता है, चाहे सुबह का वक्त हो, चाहे मंझन का वक्त हो, चाहे रात का वक्त हो, तीनों वक्तों में वो उठता है और अपने अल्लाह के हुजूर जाता है। अजीजान, जब अल्लाह इसको हुक्म देगा कि जाओ इस बंदे की जाके रूह कब्ज करो, तो वो रूह कब्ज करने से पहले जन्नत के बागों में जाएगा और वहां से फूलों का गुलदस्ता बनाएगा और फौरन से उस बंदे के पास आएगा और उसको फूल सूंघाएगा, कहेगा अल्लाह के दोस्त बस इसको सूंघ ले। और रिवायात में है कि जब ये सूंघा जाएगा उसकी रूह कब्ज हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से, ना कोई सख्ती होगी ना कुछ होगा। यहाँ तक कि मैंने अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ी है, उसमें एक शख्स बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में कासिम सुलेमानी को देखा। उनसे मैंने पूछा कि कासिम सुलेमानी मुझे बताइए जब आपकी रूह कब्ज हुई तो कैसे कब्ज हुई थी? उन्होंने कहा कि बस एक फरिश्ता आया, मेरे पास एक फूल लेकर आया और मेरी रूह यूं करके कब्ज हो गई, जो मुझे पता ही नहीं चला। तो उस वक्त जब मैंने ये रिवायत पढ़ी किताब में तो मुझे एकदम उस किताब का हवाला याद आया कि वाक़अन कि ये जो शहीद और ऐसी हस्तियां होती हैं कि जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ती हैं, उनके लिए मलकुल मौत को अल्लाह ने इज़्न दिया है कि तुम जाओ फूल लेकर और उनकी ऐसे रूह कब्ज करो। बज़ाने मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बहुत आसानी के साथ हमें कोई दर्द ना हो जब हमारी, क्योंकि मौत तो आनी है, चाहे मौत शहादत की हो, चाहे बिस्तरे मर्द पर हो, चाहे एक्सीडेंट में हो, जब मौत लिखी होगी वो तो आनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मलकुल मौत हमारी रूह को आसानी से निकाले तो बस अपनी नमाजों को अव्वल वक्त पढ़ें। अली का चाहने वाला हो ही नहीं सकता कि उसकी नमाज अव्वल वक्त ना हो, क्योंकि हमारे मौला की हस्ती तो वो है कि जब वो नमाज पढ़ता है तो उस आलम में अगर उसकी पैरों से तीर भी खींच लिया जाए तो इमाम अली को पता नहीं चलता। अजीजान, अपनी नमाजों की तरफ तवज्जो कीजिए, क्योंकि रिवायात में है कि सबसे पहले जो हिसाब किताब आपसे लिया जाएगा वो आपकी नमाजों का है, बाकी चीजें सब बाद में ली जाएंगी। अगर आपकी नमाजें कबूल नहीं होंगी तो अल्लाह आगे के सारे नेक अमाल की तरफ नहीं बढ़ेगा, पहले आपकी नमाजों का हिसाब किताब होगा। अपनी नमाजों को दुरुस्त कीजिए अज़ीज़ान मोहतरम। बस अपने मज़लूमीन को आप कैसे हदिया करेंगे अगर आप खुद नमाज न पढ़ते हो? अगर इस वक्त कोई भी बहन ऐसी है कि जो नमाज में सुस्ती दिखाती है, अब इस वक्त इसी वक्त अपने मौला से वादा करे कि मौला आइंदा मैं अपनी नमाजों को बेहतरीन बनाऊंगी, मौला आइंदा मैं अपनी नमाजों को अव्वल वक्त पढ़ूंगी। अगर आप नमाजों को आखिर वक्त पढ़ते हैं तो अब कोशिश कीजिए जितना नजदीक पढ़ सकते हैं और एक वक्त लेकर आए कि अपनी नमाजों को अव्वल वक्त में ले आए और अल्लाह से मदद मांगे कि या अल्लाह मेरी नमाजें बेहतरीन हो, वैसी नमाजें हो कि जैसा मेरा मौला मुझसे चाहता है। बस दाराने मोहतरम, आपका बहुत सारा वक्त लिया है। बहरहाल अब मसाइब की तरफ चलते हैं। आप सब जानते हैं मसाइब को। अगर आपकी आंखों में एक कतरा भी अबा अब्दुल्लाह हुसैन के लिए आंसू आ जाता है तो इमाम हुसैन आपको अजर देगा। अज़ादारान मोहतरम, रोज़े आशूरा की सख्तियाँ अपनी जगह है। जब रोज़े आशूरा हो गई तो इमाम सज्जाद पूरी जिंदगी रोए हैं, खून के आंसू रोए। जब भी किसी को देखते थे कि किसी जानवर को ज़िबह किया जा रहा है तो पूछते थे क्या इसको पानी दिया है? वो कहते थे कि हाँ मौला इसको पानी दिया। फिर पूछते थे क्या ज़िबह करने से पहले पानी दिया? कहा हाँ मौला हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहा मेरे बाबा को मारने वाले भी तो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने मेरे बाबा को प्यासा शहीद कर दिया। पानी को देखते तो रोते थे, खाने को देखते तो रोते थे। अरे इमाम कभी अपने बिस्तर पर नहीं लेटे। बहरहाल मेरे इमाम कहा, मगर इमाम जानते थे किस गुर्बत के आलम में मेरा हुसैन मारा गया है, किस गुर्बत के आलम में बाबा को मारा है। लेकिन उसके बाद जब मौला ने कूफा और शाम का बाजार देखा और जब भी पूछा मौला सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था, तो आपने हमेशा कहा अश्शाम अश्शाम। आप सबको पता है मौला को 3 दिन लगे हैं यजीद के दरबार में दाखिल होने में। आखिर वो 10-20 मिनट का रास्ता इतना 3 दिन क्यों बन गया? अजीजों सोचिए, गैरों का मजमा था और अली की बेटियों तक के सर थी। मज़ारे मोहतरम मौला गए हैं यजीद के दरबार में। बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया, मौला सज्जाद ने खुतबा दिया,
कोई बच्ची रोती है हम क्या करते हैं, उसको खिलौने देते हैं, लेकिन हाय मेरी शहजादी जिसको अपने बाप का सर मिला, अरे बाप का सर देखा, खाक में हटी हुई जुल्फे, चेहरा जख्मी, होठों पे ताजा छड़ी के निशान, अरे बच्ची को बाप क्या मिला, फौरन गले से लगा लिया, सर को उठा के बोसा दिया है, अरे कहती है बाबा, बाबा ये आपके रुखसारों पे खून कैसा है, बाबा आपकी रगें किसने काट डाली, बाबा ये पेशानी पे चोट कैसी है, बाबा आपके जाने के बाद खैमों में आग लग गई, बाबा मेरी चादर छीन ली, बाबा मुझे तमाचे मारे, अरे बाबा ये जिंदान बहुत बुरा, मुझे ले जाओ, बस ये कहते कहते वो बच्ची खामोश हो गई। अब मौला सज्जाद कहते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस बीबियां समझ गई कि सकीना जा चुकी है, अरे मौला सज्जाद ने एक छोटी सी कब्र बनाई, आवाज दी ओ मेरे 72 के अज़ादार बाबा, अपनी सकीना की लाश को ले लो। अल्लाह